Hello students, how are you? I hope you all are fine. Yes, today we shall start in Swami and Friends, our 6th chapter, which is A Friend in Need. Till now we studied about what is a tale, Rajam and money, etc. all our chapters. Now today we continue with this. One afternoon 3 weeks later, means all the incidents after that 3 weeks, Swaminathan stood before Mani's house. Swaminathan went to Mani's house and gave a whistle, means for calling him. Mani joined him. Mani came there, he joined him, and they started for Rajam's house. Means they were going for Rajam's house, they were going to Rajam's house, speculating on the way, means guessing, making speculations on the way about the surprise which Rajam had said he would give them if they saw him that afternoon. Means if Mani and Swami came to his house, came to his home, so he would give them a surprise. For a surprise, he called them at his house. So they were going to his house, but they didn't know about the surprise, what he wanted, what Rajam wanted to give to them. Now Swami said that he thought Rajam was merely joking. Rajam was only joking. He only played that trick to get both of them into his house. Okay, Swami said so to Mani. Mani got agreed with him. Now Swaminathan said again that Mani was gracious. Swaminathan said it again that Rajam wanted to call them at home for giving some surprise, but Mani was gracious enough to admit that it might so. Mani was not convinced with Swami, so they thought all the possible subjects, means which could surprise them, and at last they left all those speculations. When they didn't understand what to guess, they left all those speculation at the end. Now their thought turned to their enemies. बेटे यहाँ पर एक आफ्टरनून को मनी और स्वामी राजम के घर पर जाते हैं. राजम ने उनको कुछ सरप्राइज़ देने के लिए बुलाया है. अब यहाँ अनुमान लगाते हुए, गेसिंग करते हुए वो जा रहे हैं कि क्या सरप्राइज़ देने के लिए बुलाया है. तो स्वामीनाथन को ऐसा लगता है कि ये ज़रूर हमको घर पर बुलाने के लिए हमको मतलब जोक कर रहा है, हमसे मजाक कर रहा था कि हम उसके घर पर जाएं, कोई सरप्राइज़ उसको देना नहीं है. तो यहाँ पर ये मनी जो है उसकी बात से कन्विंस नहीं होता है. यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे, बहुत सारे विषयों पर सोच लिया कि भाई क्या बात हो सकती है कि क्यों राजम ने उनको अपने घर पर बुलाया हुआ है. अब यहाँ उनके जो थॉट्स हैं वो उनके शत्रुओं की ओर, दोनों के थॉट उनके शत्रुओं की ओर चले जाते हैं. अब उनके शत्रु कौन थे? जो पिछली बार लड़ाई हुई थी स्वामी और मनी की, वो जो तीनों बच्चे थे उनकी तरफ जाते हैं. यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मनी आज. मनी उससे पूछता है स्वामी से कि मतलब बोलता है कि तुम्हें पता है मैं मनी इन लोगों के साथ क्या करने जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू ब्रेक सोमूज वेस्ट. आई नो वेयर ही लिव्स. He intended to break Somu's waist. Waist means the lower part of the body. So I am going to break his waist. I know where he lives. Mani says he knew where he lived, where Somu lived. He lives in Kabir Street behind the market. He said that he lived in Kabir Street behind the market, and he had often seen him coming out at nights. He had seen him at nights to a shop in the market for bitter leaves. बिटर लीव्स के मार्केट में उसने उनको देखा है, पान की दुकान पे कई बार वो आते हुए उनको देखा है. अब वो बोलता है मनी कि आई शैल फर्स्ट फ्लिंग अ स्टोन एट द म्यूनसिपल लैम्प एंड पुट इट आउट.
पहले तो मैं वो जो म्यूनिसिपैलिटी का लैंप है उसको पहले एक पत्थर मार के पहले बंद कर दूंगा, पुट अप कर दूंगा। एंड यू हैव नो आइडिया हाउ डार्क कबीर स्ट्रीट इज़। स्वामी से बात कर रहा है और स्वामी को बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि कबीर स्ट्रीट कितना रात में वहाँ सुनसान हो जाता है, कबीर स्ट्रीट में कितना अंधेरा हो जाता है। आई शैल वेट विद माई क्लब एंड एज सुन एज ही अपीयर्स, और जैसे ही वो आएगा, ठीक है, मैं अपनी क्लब के साथ, अपनी छड़ी के साथ, अपने डंडे के साथ वहाँ पर वेट करूँगा, और जैसे ही वो सोमू आएगा, ही विल स्प्रॉल इन द डस्ट विद ब्रोकन बोन्स, मतलब अपनी टूटी हुई हड्डियों के साथ वो जमीन पर पड़ा मिलेगा। देखना तुम, स्वामी को बोलता है देखना तुम, मैं ऐसा करने वाला हूँ। मतलब यहाँ पर पूरी एनमिटी है उसके मन में, मनी के मन में, क्योंकि सोमू ने मनी के स्ट्रेंथ को चैलेंज किया था, उसकी पावर को चैलेंज किया था सोमू ने। और सोमू और मनी की लड़ाई पिछली बार हमने देखा फील्ड में हुई थी, जिसको हेडमास्टर ने ओपीयून के साथ आकर रोका था। तब से यहाँ पर सोमू मनी का दुश्मन बन गया था। अब यहाँ वो ऐसी बातें बोलता है डरावनी, तो स्वामीनाथन ये सुनकर ही शडर्ड एट द थॉट, मीन्स वो घबरा जाता है, ठीक है। एंड दैट्स नॉट ऑल, मनी सेड आई एम गोइंग टू गेट दैट पी अंडर माई हील। वो पी जो है, सैमुअल जो है, उसको मैं अपने पैर के नीचे कुचल दूंगा, एंड प्रेस हिम टू द अर्थ, कुचल डालूंगा पैर के नीचे, मनी बोलता है। एंड शंकर इज गोइंग टू हैंग बाय हिज टफ्ट ओवर सरयू फ्रॉम अ पीपल ब्रांच। और वो जो शंकर है ना, उसकी जो हमने पहले पढ़ा था कि उसके वो चोटी बांध के आता था, उसमें फ्लावर लगा के आता था, तब वो बोलता है चोटी को उसकी पकड़ के पीपल की ब्रांच से बांध के उसको लटका दूंगा। मतलब यहाँ मनी तीनों से अपना बदला लेने की फिराक में है, बदला लेने के लिए वो प्लानिंग कर रहा है, उसके दिमाग में ये सब चल रहा है। Now they stopped when they reached राजम्स हाउस। ये बातें करते हुए वो चले जा रहे हैं। अब राजम के घर के पास वो आकर रुक जाते हैं। द गेट वॉज बोल्टेड एंड दे गॉट अप द वॉल एंड जम्प्ड इन। अब दरवाज़ा लगा हुआ था, अब वो दरवाज़ा लगा है तो उसको खुलवाना चाहिए, नहीं, वो कूद के अंदर जाते हैं वहाँ से। अ सर्वेंट केम रनिंग टुवर्ड्स देम, ही आस्क्ड व्हाई डिड यू क्लाइंब द वॉल। सर्वेंट आता है अचानक से और उनको बोलता है कि तुम यहाँ क्यों कूद रहे हो, दीवार को फांद के क्यों आ रहे हो। तो यहाँ मनी बोलता है व्हाट इज दैट, सॉरी इज दैट वॉल योर प्रॉपर्टी। मनी उसी को धमकाते हुए बोलता है कि क्या ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है। अब सर्वेंट क्यों मना कर रहा था कि इनके कहीं हड्डी पसली ना टूट जाए, तो सर्वेंट वैसा वेरीली चिंता से बोलता है। तो अब मनी बोलता है कि तुम तो सेफ हो ना, सो माइंड योर ओन बिजनेस, या हमारी चिंता मत करो, तुम्हें इससे क्या करना है कि हम गिरे पड़े हड्डी टूटे, तुम्हें इससे क्या करना है। यहाँ पर स्वामी बोलता है उसको कि व्हाट इज़ दैट फॉर यू, सॉरी व्हाट इज़ दैट टू यू, योर रिब्स आर सेफ, तुम्हारी तो पसलियाँ सुरक्षित है ना, तुमको क्या करना। मनी के साथ रह के यहाँ भी वो थोड़ी डेयरिंग बता रहा है स्वामी। एंड जस्ट अ वर्ड मोर, मनी सेड डू यू हैपन टू बी एनी चांस द पुलिस सुपरिटेंडेंट सर। यहाँ वो बोलता है कि ऐसा कुछ है कि तुम कोई पुलिस एसपी के बेटे वगैरह हो। अब सर्वेंट बोलता है नहीं नहीं ऐसी तो बात नहीं है। मनी बोलता है वेरी वेल देन वी हैव कम टू सी एंड टॉक टू द पुलिस सुपरिटेंडेंट सन। मनी वैसे ही रौब वाले अंदाज में उसे बोलता है तो हम यहाँ पर एसपी के बेटे से मिलना है, और तुम एसपी के तो बेटे हो नहीं, है ना, हमारा कुछ भी हो, तुम्हें क्या करने का है। तो अब सर्वेंट यहाँ ऐसा ही जैसे ही सुनता है तो वो तुरंत वापस चला जाता है। ठीक है, इन लोगों को जो डांट रहा था या बोल रहा था वो बंद करके वापस चला जाता है। अब दे बैंग्ड देयर फीस्ट ऑन राजम्स डोर। राजम के दरवाजे के पास पहुंचते हैं, उसके रूम के, और उसको ऐसे नॉक करते हैं। दे हर्ड द क्लिकिंग ऑफ द लैच एंड हिड देमसेल्व्स बिहाइंड द पिलर। और जैसे ही वो उसका ऐसा लगता है कि बोल्ट खुल रहा है तो अपने आप को पिलर के पीछे छुपा लेते हैं। वहाँ पर जो राजम के घर के सामने पिलर थे वहाँ छुपा लेते हैं। राजम ऐसे झांक कर देखता है और कोई नहीं दिखता है तो दरवाजे को उड़का देता है, लगा देता है। Now these both, Mani and Swami came out, then again stood before the door and wondered what to do. अब उन्होंने देखा कि अब ये राजम तो आया और देखकर चला गया, ये लोग छुप गए थे तो उसके साथ प्रैंक कर रहे थे, शरारत कर रहे थे, अब क्या करें। तो स्वामीनाथन applied his mouth to the keyhole and mewed like a cat. स्वामीनाथन, अब इनको शरारत सूझी दोनों बच्चों को, ठीक है। अब उन्होंने वो जो की होल होता है वहाँ पर अपना मुंह टिका के स्वामीनाथन बिल्ली की आवाज़ निकालता है, म्याऊं करके बोलता है।
मनी उसको हटाता है और वहाँ अपना हाथ मुंह रखकर चेहरा रख के वहाँ पर एक डॉग की आवाज़ निकालता है, पपी की आवाज़ निकालता है। फिर से इनके जो कैट और डॉग की आवाज़ सुन के फिर से वो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ होती है। थोड़ा सा दरवाज़ा शायद इनके धक्के से या जो भी है ऐसा हल्का सा खुल जाता है। मनी स्वामी को विस्पर करते हुए बोलता है कि यू आर अ ब्लाइंड किटन, आई विल बी अ ब्लाइंड पपी। मीन्स ही टोल्ड हिम दैट दे वुड एक्ट एज a blind kitten and a blind puppy, means they will close their they would close their eyes and they will go inside, okay, acting as blind puppy and blind kitten. Many fell down on his knees and hands shut his eyes. मनी अपने घुटनों के बल बैठ जाता है, जैसे कि उन लोगों के जानवरों का वो जो पोजीशन होता है ना, हाथ पैर के ऊपर, तो वैसे फेल डाउन ऑन हिज नीज, घुटने के बल, एंड शट हिज आईज, पुश द डोर विद हिज हेड। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, उसने दरवाजे को धक्का दिया हेड से, एंड एंटर्ड राजम्स रूम इन अ रोल ऑफ अ ब्लाइंड पपी। अब वो ऐसा धक्का दे के नीचे घुटनों के बल पूरा पपी के एक्टिंग करते हुए, जैसे एक अपने डॉगी का पिल्ला होता है उस टाइप से एक्ट करते हुए आंख बंद करके वो उसके रूम के अंदर एंटर हो जाता है। किसके? राजम के। अब स्वामीनाथन क्रॉल्ड बिहाइंड हिम, शट आईज, म्यूइंग फॉर ऑल ही वाज वर्थ। स्वामीनाथन ने भी वैसे ही बिल्ली के बच्चे की एक्टिंग, किटन की एक्टिंग की, वैसे ही वो घुटनों के बल हो गया और मनी के पीछे पीछे वो भी आंख बंद करके म्याऊं म्याऊं करते हुए जाने लगा। वो एक भौं भौं करते हुए जा रहा है, वो एक म्याऊं म्याऊं करते हुए जा रहा है। दे मूव्ड राउंड एंड राउंड द रूम। आंखें बंद है उन लोगों की, ये ध्यान दीजिएगा, आंखें बंद है, और वो पूरे रूम में राउंड एंड राउंड दे वर मूविंग। Rajam adding to the interest of the game by mewing and barking in answer every few seconds. अब राजम भी बदले में, जैसे ये म्याऊं करता है तो राजम भी बदले में म्याऊं करता, ये भौं भौं करता, राजम भी बदले में भौं भौं, तो वो भी और गेम को इंटरेस्टिंग बना रहा था। ये बच्चे तो प्रैंक कर ही रहे थे, राजम भी उनके गेम में वहीं बैठा ही हुआ था, रूम में ही था, शामिल था, तो वो भी इनके साथ एक्टिंग कर रहा था। अब ये लोगों की आंखें, ये दोनों की आंखें बंद थी, मनी और स्वामी की, तो ये देख नहीं पाते, ये बस रूम में घूम रहे थे और बस म्याऊं और भौं भौं कर रहे थे। द ब्लाइंड पपी ब्रश्ड इट्स साइड a leg and thinking that it belonged to Rajam softly bit the calf muscle. अब यहाँ जो ब्लाइंड पपी कौन था? मनी था। अब वो वहाँ उसको ऐसा लगा कि जो काफ मतलब जो मांस होता है ना, अपने शरीर का मांस, उसको ये पैर के नीचे जो पिंडलियों के पास होता है उसको काफ बोला जाता है, तो वो सॉफ्ट काफ उसको टच होता है तो वो उसको बिट करता है। यहाँ पर उसको लगा कि राजम का पैर होगा, तो इमेजिन इट्स कन्फ्यूजन व्हेन ओपनड इट्स आईज एंड सॉ दैट इट वाज बाइटिंग इट्स एनिमी सोमू। लेकिन ये क्या, जब उसने आंखें खोली उसको लगा वो राजम के पैर को काट रहा है, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली तो उसने क्या देखा, अरे ये तो सोमू है। और सोमू कौन था? उसका एनिमी उसके हिसाब से, क्योंकि उनका झगड़ा हो चुका था। तो ही सॉ दैट इट वॉज बाइटिंग, सी हियर इट इज रिटन फॉर दैट ब्लाइंड पपी को हम लोग इट में लेते हैं, इसलिए यहाँ पर इट लिखा गया, ही नहीं लिखा गया है मनी के हिसाब से, ठीक है, यहाँ पर इट पपी के हिसाब से लिखा गया है। सोमू द ब्लाइंड किटन नेसल्ड क्लोज टू अ लेग। अब ब्लाइंड किटन कौन था? ब्लाइंड किटन स्वामी था। अब वो भी एक पैर के पास, उसकी भी आंख बंद थी, अभी मनी की तो आंख खोल के मनी देख लिया, लेकिन स्वामी को ही नहीं पता। स्वामी भी ऐसे ही घूमते हुए वो एक जगह पे आके रुकता है और एक पैर के पास, और उसमें अपना ऐसा पंजा मतलब उसका हाथ जो वो ऐसा बना हुआ था, ऐसा पंजा मारता है। ओपनिंग इट्स आईज इट फाउंड, यहाँ पे भी इट किसके लिए? वो किटन के लिए, किटन जो स्वामी बना हुआ है। तो इट्स आईज इट फाउंड दैट इट वॉज फॉन्डलिंग मतलब टचिंग a leg that belonged to its enemy शंकर। लेकिन वो देखता है, जैसे आँख खुलता है कि उसने तो शंकर के पैर को पकड़ा हुआ है, मतलब शंकर के पैर को काटने की कोशिश कर रहा है, इनकी आँख बंद थी। वहाँ पर वो सोमू और शंकर दोनों ऑलरेडी मौजूद थे, लेकिन इनको नहीं पता था, ये एंट्री ही करते हैं तो इनकी आँख बंद थी। तो यहाँ पर आँख बंदे हुए घूमते हुए म्याऊं म्याऊं करते हुए प्रैंक कर रहे थे, शरारत कर रहे थे, और राजम भी उनका साथ दे रहा था। लेकिन राजम को भर पता था कि उसके घर में कौन कौन है, इन लोगों को नहीं मालूम था। जैसे ही इन्होंने वो पैर को छुआ, पैर को काटे, उन लोगों ने राजम के पैर समझे दोनों ने, लेकिन यहाँ जैसी आंखें खोली तो एक को सोमू दिखाई देता और एक को शंकर, दोनों उनके दुश्मन। मनी रिमेन्ड स्टर्न फॉर अ मोमेंट, सरप्राइज, ही गॉट वेरी सरप्राइज फॉर अ मोमेंट एंड स्क्रैम्बल्ड टू हिज फीट।
उसको एकदम से गुस्सा आ गया। He looked around, his face twitching with shame and rage. शर्मिंदगी और गुस्से के मारे उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। मनी का ऑब्वियस सी बात है, मनी को गुस्सा आ गया। He saw the pea sitting in a corner. पी भी था वहाँ मौजूद, सैमुअल भी एक कॉर्नर में बैठा हुआ। His eyes twinkling with mischief. और वो पी शरारत से उसकी आंखें चमक रही थी। And felt impelled to take him by the throat. He turned round and saw Rajam regarding him steadily, his mouth still quivering with a smothered grin. राजम को जब राजम पे नज़र गई तो देखा कि राजम अभी भी अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहा था और राजम को हंसी छूट रही थी। अब ये ऑब्वियसली प्रैंक है, शरारत है। इन लोग शरारत करने के उद्देश्य से आए थे, मनी और स्वामी, लेकिन ये शरारत उल्टे इनको भारी पड़ गई। किनको? मनी और स्वामी को। वो प्रैंक कर रहे थे बट प्रैंक उन्हीं पे हावी हो गई। ठीक है, कैसे हावी हो गई? क्योंकि यहाँ पर उनकी आंखें बंद थी और ये आंखें बंद होने की वजह से जब वो घूमते हुए अपने उनको लगा कि राजम का पैर है और वो शरारत में खेल में कर रहे थे, लेकिन वो राजम का पैर नहीं होते। एक के लिए वो सोमू था और एक के लिए वो शंकर। एक ने शंकर के पैर को काटा, एक ने सोमू के पैर को। तो यहाँ पर मनी को बहुत गुस्सा आ गया उस चीज़ का, शौक भी हुआ और गुस्सा भी आ गया। एज फॉर स्वामीनाथन, अब स्वामीनाथन के क्या हाल हुए? स्वामीनाथन तो वैसे ही टिबिट टाइप का लड़का था, डरपोक था। अब वो बोलता है, वो उसको ऐसा लगा, ही फेल्ट दैट द बेस्ट प्लेस फॉर हिमसेल्फ वुड बी द डार्कनेस एंड ऑब्सक्यूरिटी। ऑब्सक्यूरिटी मतलब हिडन प्लेस, अंडर अ टेबल और अ चेयर। अब शर्म तो स्वामी को भी आई और इसको क्या लग रहा था कि बस कहीं से भी कोई मुझे टेबल चेयर मिल जाए और जाके छुप जाऊं शर्म के मारे। लेकिन मनी को शर्मिंदगी भी हुई और गुस्सा भी आया, स्वामी को शर्म हुई, तो वो चाह रहा था कि किसी ऑब्सक्योर प्लेस में जाके अपना सिर छुपा ले, अपने मुंह छुपा ले। उसको इतनी शर्म आ रही थी क्योंकि अब जिससे वो बदला लेने की सोच रहे थे, जिससे लड़ाई करने की सोच रहे थे, और आज उन्हीं लोगों को उन्होंने काट लिया और उन्हीं लोगों के पैर को उन्होंने छुआ। एक तरह से शर्मिंदगी वाली बात उनके लिए। अब यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय दिस राजम? मनी को गुस्सा है, उसने पूछा इसका मतलब क्या है? राजम बोलता है, वाई आर यू सो वाइल्ड? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? इट वॉज योर फॉल्ट, मनी सेड वेहेमेंटली, मीन्स aggressively. He said, it was your fault. I didn't know. He looked around. मुझे नहीं पता था यहाँ ये सब बैठे। मनी गुस्से में बताई, तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारा फॉल्ट है, मुझे नहीं मालूम था ये सब यहाँ आए हुए हैं, नहीं तो मैं ये प्रैंक करता ही नहीं। मनी का ऐसा कहना था। अब राजम उसको काम डाउन करते हुए बोलता, वेल आई डिडंट आस्क यू टू क्रॉल एंड बार्क डिड आई? मैंने तो तुमसे नहीं कहा था कि तुम ऐसे क्रॉल करो, रेंगते हुए आओ डॉग और किटन की तरह, पपी और किटन की तरह। मैंने कहा था कि तुम ही तो आए खुद। तो सही बात है, राजम की तो कोई गलती नहीं थी, गलती इन्हीं की थी, प्रैंक इन्हीं का था, शरारत इन्हीं की थी, और वही शरारत इनको भारी पड़ गई। राजम सोमू एंड कंपनी लाफ्ड। सोमू और वो जो बैठे थे शंकर और पी, वो हंसने लगे। मनी ने फिर गुस्से से चारों तरफ देखा, बोलता, आई एम गोइंग अवे राजम, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आई एम गोइंग फ्रॉम हियर, दिस इज नॉट द प्लेस फॉर मी, ये जगह मेरे लिए नहीं है। राजम रिप्लाइड, यू मे गो अवे इफ यू डोंट वांट मी टू सी यू और स्पीक टू यू एनीमोर। ठीक है, तुम चाहो तो जा सकते हो, यदि तुम नहीं चाहते कि मैं तुमसे मिलूं या तुमसे बात करूं तो तुम बेशक जा सकते हो, राजम बोलता है। मनी फिजिटेड अनइजीली, अब ही गॉट अनइजी, ही डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, थोड़ा सा बेचैन हो गया वो। राजम टुक हिम असाइड एंड सूद्ड हिम, राजम उसको साइड में लेके जाता है और उसको काम डाउन करता है। राजम टर्न देन स्वामी टू ऑल्सो हु वॉज लॉस्ट इन बॉटमलेस मिजरी, राजम जो बहुत ज़्यादा ही दुख में आ गया था, अब उसको भी परेशानी हो रही थी, दुख हो रहा था, उसने उसको भी कंफर्ट किया, उसको फ्लैटर किया, फ्लैटर मतलब चापलूसी की उनको, ये कहकर कि इट वॉज द बेस्ट इमिटेशन ऑफ अ कैट एंड डॉग, बहुत अच्छी एक्टिंग की तुम लोगों ने कैट एंड डॉग की, दैट ही हैड एवर विटनेस्ड इन हिज लाइफ, मैंने ऐसी एक्टिंग कुत्ते और बिल्ली की तो अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। अब वो दोनों बहुत नाराज़ हो गए थे, बहुत दुखी भी हो गए थे, अब उनको किसी तरह से शांत करना था, तो यहाँ पर राजम ने उनको थोड़ा सा फ्लैटरिंग भी किया और कहा कि तुम लोगों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। ही एडमिटेड दैट फॉर अ फ्यू मिनट्स, ही मीन्स राजम एडमिटेड दैट फॉर अ फ्यू मिनट्स ही कुड not understand that they were imaginary or they were acting as kitten and puppy. He thought that they were real dog and cat. They would get prizes if they did it in fairs.
If they did it in somewhere else, they would definitely get prizes. If Swami and Mani would be good enough to repeat the fun, he told them, उसने उनसे कहा, बताया कि यदि उसको फिर से रिपीट करना चाहें तो he would be delighted, उसको बहुत खुशी होगी। राजम को फिर से यहाँ पे एक्टिंग करना चाहें, तुम लोग एक्टिंग करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। एंड इवन आस्क हिज फादर टू कम एंड वॉच, मैं अपने पिताजी को भी बुलाकर तुम्हारा ये जो एक्ट है ये दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर राजम उनको ऐसे चापलूसी भरे अंदाज में बोलता है। अब दिस वॉज सूदिंग, ये उनके लिए थोड़ा सा राहत भरा था। वो लोग प्लीज हो गए, दे गॉट हैप्पी ऑन लिसनिंग दिस, दैट दे एक्टेड वेरी वेल एंड राजम अप्रिशिएटेड देम। स्वामी एंड मनी फेल्ट प्राउड ऑफ देमसेल्व्स, they felt proud of themselves. And after the round of eating that followed, and after this they had something to eat, they were perfectly happy. Now they got very happy except when they thought of the other three in the room. प्रॉब्लम बस यही थी कि वो तीन जो उनके दुश्मन थे वो वहाँ थे, अदरवाइज दे बोथ वर वेरी हैप्पी देयर. They were in this state of mind when Rajam began a lecture on friendship. वो इसी इम्प्रेशन में थे कि ये तीनों हमारे दुश्मन बैठे हैं, है ना, और उन लोगों को अच्छा नहीं लग रही थी ये बात। इसी समय राजम ने फ्रेंडशिप पे एक उन लोगों को लेक्चर दिया, ठीक है, कुछ बातें बताई। He said impressive things about friendship, कुछ अच्छी बातें फ्रेंडशिप पे इम्प्रेसिव, कोटिंग फ्रॉम हिज बुक द स्टोरी ऑफ डाइंग ओल्ड मैन एंड द फेगॉट्स. फेगॉट्स मीन्स पीसेस ऑफ वुड, लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं उसको फिगर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर वो एक आपने भी सुना होगा, एक बूढ़े व्यक्ति की कहानी और मरते हुए बूढ़े व्यक्ति की कहानी, और वो लकड़ियों के बंडल की कहानी सुना होगा आप लोगों ने, वही विच प्रूव दैट यूनियन वॉज स्ट्रेंथ. जैसे वो भाई हुआ करते थे, चारों बहुत लड़ते थे, तो वो अब ओल्ड मैन को बड़ी चिंता होती थी कि ये चारों बेटे लड़ते हैं तो इनका तो कोई भी फ़ायदा उठा सकता है, तो उनको वो आप सुना होगा आपने कि बुलाता है और एक एक लकड़ी तोड़ने देता है तो वो फटाफट तोड़ते हैं, लेकिन जब बंडल बना के देता है तो वो नहीं तोड़ पाते. तो वही चीज़ उनको बताता है कि यूनियन, एकता में शक्ति होती है. अ फ्रेंड इन नीड वॉज अ फ्रेंड इन डीड, वो ये भी बताता है कि ज़रूरत के समय जो काम आए वही सच्चा मित्र होता है, ये भी उसको बताता है उन लोगों को. He then started giving hair-raising accounts of what hell had in store for persons who fostered enmity. अब उनने ये भी इनको समझाया, राजम ने अपने फ्रेंड्स को, कि नर्क में ऐसे लोगों के लिए बहुत यातनाएं हैं, बहुत सफरिंग्स हैं, जो लोग अपने मन में दुश्मनी को पालते हैं या किसी से दुश्मनी रखते हैं. According to Rajam, it was written in the Veda that a person who fostered enmity should be locked up in a small room after his death. मरने के बाद वो व्यक्ति की आत्मा तक को मतलब प्रताड़ित किया जाता है, उसको यातनाएं दी जाती हैं, उसको एक रूम में लॉक कर दिया जाता है, ठीक है. यहाँ पर बताता है वेदों में लिखा हुआ है ऐसा व्यक्ति जो एनमिटी को फॉस्टर करता है, एनमिटी को बढ़ावा देता है या पालता है दुश्मनी को, ही वुड बी मेड टू स्टैंड स्टार्क नेकेड ऑन अ पेडेस्टल ऑफ रेड हॉट आयरन. अब वो रूम में एक ऐसी चबूतरे पे, पेडेस्टल पे, और पेडेस्टल किसका, रेड हॉट आयरन का, मतलब गरम लाल जो लोहा होता है वो उसका बना हुआ चबूतरा, उस पर उसको बिल्कुल खड़ा रखा जाता है, नेकेड, ठीक है, वो ऐसी सजा दी जाती है. देयर वर बी हाइव्स ऑल अराउंड विद बीज एज बिग एज लेमन्स. तो वहाँ पर बी हाइव्स मतलब मधुमक्खी के छाते होते हैं, और मधुमक्खियाँ कितनी बड़ी बड़ी, नींबू जितनी बड़ी बड़ी मधुमक्खियाँ हम लोग जनरली इतनी से देखते हैं ना, वहाँ मधुमक्खियाँ इतनी बड़ी बड़ी, लेमन जितने आकार की, वो रूम में, जिस रूम में रेड हॉट आयरन पे उसको खड़ा किया जाता है, वहीं पर ही लेमन जितनी मधुमक्खियाँ भी वो पूरे रूम भर रहती हैं. इफ द सिनर यहाँ किसको बोला गया, सिनर मतलब जो वो पाप करता है. पाप किसने किया, जिसने दुश्मनी को मन में पाला या दुश्मनी को बढ़ाया. तो वो सिनर जो रहता है, यदि वो स्टेप डाउन फ्रॉम द पेडस्टल से नीचे उतरने की कोशिश भी करेगा, भाई गर्म लग रहा है, कोई भी अपने आप को बचाएगा और नीचे उतरने की कोशिश करेगा, तो नीचे उतरेगा यदि, तो ही वुड हैव टू पुट हिज फुट ऑन इमेंस स्कॉर्पियंस एंड सेंटीपीड्स दैट क्रॉल्ड अबाउट द रूम इन हंड्रेड्स.
वो रूम ऐसे ही नहीं है सिंपल सा, मधुमक्खी तो है ही है, साथ में वहाँ पर वो जो जहरीले कीड़े होते हैं, जहरीले स्कॉर्पियंस और सेंटीपीड्स, वो भी सैकड़ों की तादाद में फैले पड़े। मतलब आप पैर नीचे भी रखेंगे वो रेड हॉट आयरन से बचने के लिए, तो वहाँ पर वो आपको वो जो जंतु हैं, जीव हैं, वो आपको काट काट के परेशान कर डालेंगे। मर तो हम ऑलरेडी गए हैं, मरने की बात की बात हो रही है ये कि आपको एक रूम में आपकी आत्मा को ऐसा सताया जाता है, तो आप तो कहीं भाग भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो यहाँ इस तरीके से यातनाएं, सफरिंग्स, टॉर्चर्स दिए जाते हैं। और शडर वेंट थ्रू द कंपनी, कंपनी मतलब वो जितने भी बैठे हुए थे वहाँ पर, मणि, स्वामी शंकर, सोमू एसेट्रा एसेट्रा, वो सब काँप गए सुन के जब राजम ने उनको ये सब बातें बताई। बेटा इस हमारे पूरे इसमें राजम बहुत अच्छा लड़का बताया गया है। इसके पहले हमने देखा कि राजम और मणि की भी फ्रेंडशिप कैसी होती है। देखा हमने, राजम लड़ने की नीयत से नहीं आया था, वो तो सिर्फ डराने के लिए बंदूक लाया था और मणि को यही बोलता है तुमको मेरे से प्रॉब्लम क्या है ना। और इस तरह से वो खुद उनके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। दुश्मनी वो नहीं पालता, दुश्मनी ये लोग पालते हैं, लेकिन वो खुद दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। और वैसे यहाँ पर भी वो यही काम कर रहा है कि वो बच्चों को समझाने की, अपने फ्रेंड्स को समझाने की कोशिश कर रहा है कि मुसीबत के समय में एक मित्र ही काम आता है, और जो मुसीबत में काम है वही सच्चा मित्र होता है। द सिनर वुड हैव टू स्टैंड, अब इसका बोलना खत्म नहीं हुआ, अब इतना तो सुने तो ये तो कांप गए पूरे बच्चे। और बोलता हुआ आगे, द सिनर वुड हैव टू स्टैंड दस फॉर अ मंथ विदाउट फूड और स्लीप। इस तरह से पापी व्यक्ति को एक महीने तक बिना खाना और पानी, है ना, लिए वहाँ पर ये सब सफरिंग सहन करनी पड़ती है। आत्मा है, उनको वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर वो जैसा वो जानता है, समझता है, उतना वो बच्चा भी बहुत बड़ा नहीं है, जितना समझता उसने उतना बताया। एट द एंड ऑफ द मंथ ही वुड बी ट्रांसफर टू अनदर प्लेस। एक महीने बाद उसकी भी सज़ा ख़त्म नहीं होती, टॉर्चर, उसको दूसरी प्लेस पे ट्रांसफ़र किया जाता है। अ वेरी नैरो ब्रिज ओवर अ लेक ऑफ बॉइलिंग ऑयल, वो एक बहुत ही नैरो सा ब्रिज होता है, पुल होता है, और उसके नीचे उबलता हुआ तेल का तालाब होता है या नदी होती है, जो भी होता है। हम लोगों को भी ऐसा डराते हैं ना, हमारे पहले के लोग बोला करते थे कि देखो तुम पाप करोगे, किसी का दिल दुखाओगे तो तुमको वहाँ नर्क में तेल में तला जाएगा और ऐसा और वैसा, है ना। हम लोग भी डरते ही हैं कुछ गलत काम करने से, हमको पहले से इतना डरा दिया जाता है। वैसे ही यहाँ पर ये उन बच्चों को समझाने और डराने के उद्देश्य से ही बता रहा है कि यहाँ जब वो एक महीने की अपनी सज़ा आपकी ख़त्म होती है तो फिर आपको दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए एक नैरो लेक से आपको होकर जाना पड़ता है, जो बॉइलिंग ऑयल के लेक के ऊपर ब्रिज बना हुआ, उस पर से जाते हैं। अब वो ब्रिज भी देखिए, ब्रिज वॉज सो नैरो दैट ही वुड बी एबल टू कीप ओनली 1 फुट ऑन इट एट अ टाइम। वो इतना नैरो है कि आप सिर्फ एक पैर एक बार में रख सकते हैं, दूसरा पैर भी नहीं रख सकते, ऐसे खड़े भी नहीं हो सकते। एक पैर यहाँ, दूसरा पैर वहाँ रहेगा, मतलब आप इस पोजीशन में रहेंगे, ऐसी पोजीशन में नहीं खड़े रह सकते, इस पोजीशन में। इस पोजीशन में खड़े क्या रहना है, आपको चलना है वहाँ पर, है ना, ऐसे ऐसे चलना है। अ वेरी नैरो ब्रिज, the bridge was so narrow that he would be able to keep only 1 foot on it at a time. Even on the narrow bridge, अब वो नैरो ब्रिज पर भी देयर वर प्लेंटी ऑफ वास्प नेस्ट एंड कैक्टस, उस पर भी जो आप चल रहे हैं वहाँ पे कीड़े हैं जहरीले, वास्प नाम के, और कैक्टस जंगली वो एक कांटेदार पौधा होता है, ठीक है, थॉर्नी प्लांट होता है। एंड ही वुड बी गोडेड फ्रॉम बिहाइंड टू मूव ऑन। और अब आप चाहेंगे कि हम आगे नहीं जाते, वास्प है और कैक्टस है, तो आपको पीछे से गोट किया जाएगा। गोट मतलब पीछे से आपको लकड़ी से टोचा जाएगा, आगे बढ़ो, आगे चलो, मतलब आप खड़े भी नहीं रह सकते, आपको वो सब टॉर्चर्स झेलने ही हैं। He would have to balance on 1 foot and then on another. वो छोटे से ब्रिज पे एक पैर पे बैलेंस करना है, फिर दूसरा पैर आगे करना है, फिर ऐसे करके आपको स्टेप वाइज आगे बढ़ना है, खुद को बैलेंस करते हुए। नहीं किया तो नीचे तेल में तला गए। एंड फॉर एजेस एंड एजेस, और ऐसा कितना युगों तक चलेगा, तुम्हारा तो ये टॉर्चर ख़त्म ही नहीं होगा। मतलब इतना डरा दिया उसने बच्चों को, तुम्हारा ये ख़त्म ही नहीं होगा, एजेस चलता जाएगा। टू कीप हिमसेल्फ फ्रॉम फॉलिंग इनटू द स्टीमिंग लेक बिलो एंड मूव ऑन इनडेफिनेटली। यानी वो पुल पे आपको चलते ही जाना है, युग बीत जाएंगे, और आपको बचाना भी है खुद को कि आप तेल में ना गिर पड़ जाओ, है ना, तो तला जाएंगे पूरे। तो यहाँ इतना डरा देता है वो।
द कंपनी वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, कंपनी मतलब वो जो फ्रेंड्स थे जिनमें एनमिटी थी, दे वर वेरी इम्प्रेस्ड। राजम देन इन्वाइटेड एवरीवन टू कम फॉरवर्ड एंड से दैट दे वुड हैव नो मोर enemies. Then he called everyone to come forward and say that he had no enmity in his mind, because Rajam wanted to to end up their enmity. Rajam was a very good boy. यहाँ वो चाहता था कि इन लोगों की एनमिटी पूरी की पूरी ख़त्म हो जाए, इसलिए वो अब उनको बुलाता है कि यहाँ अब आओ और मुझे बोलो कि तुम्हारे मन में कोई किसी के प्रति दुश्मनी नहीं है। इफ शंकर सेड इट ही वुड गेट अ बाउंड नोटबुक। अब यहाँ सिर्फ बोलने के लिए नहीं, इतना अच्छा लड़का है राजम, उसने ये लेक्चर दिया, बच्चों को बोला एनमिटी ख़त्म करो, और यदि एनमिटी ख़त्म करते हैं तो उनको गिफ्ट दिया जाएगा। किसके द्वारा? राजम के द्वारा। राजम बोलता है मैं गिफ्ट दूंगा। तो क्या शंकर यदि ऐसा करता है तो ही वुड गेट अ बाउंड नोटबुक, एक पूरी बाइंडेड नोटबुक। इफ स्वामीनाथन सेड इट ही वुड गेट अ क्लॉकवर्क इंजन। उसने देख लिया बच्चों को क्या क्या पसंद है, उसने वो जो इंजन है वो स्वामी के लिए रखा था, नोटबुक उसने शंकर के लिए रखा था। एंड इफ सोमू सेड इट ही वुड गेट अ बेल्ट। यदि सोमू करता है तो उसको बेल्ट मिलेगा। एंड इफ मनी सेड इट ही वुड गेट अ पॉकेट नाइफ। मनी वॉज अ गुड माइटी गुड फॉर नथिंग, तो उसके हिसाब से उसने पॉकेट नाइफ, एक छोटा सा चाकू। एंड पी वुड गेट अ मार्वेलस लिटिल पेन। ही थ्रू ओपन द कबर्ड एंड डिस्प्लेड द प्राइजेस। उसने दिखा दिया, ये देखिए मेरा कबर्ड है, आपको यदि विश्वास नहीं है तुम लोगों को तो ये प्राइजेस रखे हुए हैं, मैं तुम लोगों को दूंगा यदि तुम लोग अपनी एनमिटी खत्म करते हो तो। ही स्टूड बिफोर एंड कबर्ड, सॉरी देयर वाज साइलेंस फॉर सम टाइम। अब थोड़ी देर साइलेंस कि कौन आगे बढ़े इस चीज़ के लिए, कौन अपनी तरफ से एनमिटी खत्म करे। P was the first to do that. He stood before the cupboard and said, "Let me see the fountain pen." अब P बोलता है ठीक है, मुझे वो पेन देने वाले, दिखाओ पहले पेन। Rajam gave it to him. The P turned it round and gave it to back without any comment. उसने देखा, P ने घुमा फिरा के ऐसे पेन को देखा और वापस कर दिया राजम को। तो अब राजम पूछता है भाई डोंट यू लाइक इट, तुम्हें पसंद नहीं आई? पी अब ध्यान से कबर्ड की ओर ही देख रहा है और बोलता है कि मुझे ये बॉक्स मिल सकता है। कौन सा बॉक्स? एक छोटा सा बॉक्स था, येलो ब्लैक डिज़ाइंस थी उसमें। हालांकि राजा वो देना नहीं चाहता था, लेकिन फिर बाद में ही रिकॉल्ड दैट ही हैड 2 more बॉक्सेस लाइक दोज इन हिज ट्रंक, सो ही सेड टू हिम यस यू कैन टेक इट। उसने बोला कि ठीक है तुम ये ले सकते हो। उसने अपना माइंड चेंज किया। In a short while, Mani was sharpening a knife on his palm. Somu was tying a belt on. थोड़ी देर में मनी ने भी एनमिटी ख़त्म की। थोड़ी देर में वो अपना पॉकेट नाइफ अपने हाथ पे बस ऐसे ऐसे शार्प कर रहा था। इट मीन्स ही एंडेड हिज एनमिटी। सोमू वॉज ट्राइंग अ बेल्ट ऑन। सोमू को जो बेल्ट दिया था वो ट्राई कर रहा था। शंकर वॉज फिंगरिंग अ थिक बाउंड नोटबुक। शंकर वो पूरी जो बाउंड नोटबुक मिली थी उस पर अपनी उंगली फेर रहा था, मतलब सब खुश थे। एंड स्वामीनाथन वॉज जेलसली क्लास्पिंग अ ग्रीन इंजन टू हिज बॉसम। अब ये सब खिलौने इनके हो चुके थे, गिफ्ट्स इनके हो चुके थे, सब बहुत खुश थे और इस तरह से सब ने अपनी एनमिटी एंड कर दी एंड दे बिकेम फ्रेंड्स अगेन। So the whole credit goes to Rajam for making them friends. Okay, this was a friend in need. Okay, in this lecture we finish this. In our next lecture we shall finish the next topic of Swami and friends. Till then, bye.